جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو چلو آج آپ کو میں ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ مجھ سمیت تقریباً آپ سبھی نے کبھی نہ کبھی ونیلا فلیور کی آئس کریم، کیک یا کوئی مشروب لازمی پیا ہوگا جس میں آپ کو ونیلا کا ذائقہ آیا ہوگا۔ حقیقت میں جسے ہم لوگ ونیلا فلیور سمجھتے ہیں، دراصل وہ مصنوعی طور پر لکڑی کی پروسیسنگ سے لیگنائٹ نامی ایک مادے کو حاصل کرنے کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ونیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دراصل اصلی ونیلا کی 1 کلو گرام پھلیوں کی قیمت لگ بھگ 80 سے 90 ہزار پاکستانی روپے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز چین جیسے ملکوں کا مصنوعی تیار کردہ فلیور خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دراصل دنیا کا 80 سے 85% ونیلا کی پروڈکشن جس ملک میں ہوتی ہے اس کا نام ہے مڈغاسکر۔ اس ملک کے مقامی باشندے اپنی ملاگاسی زبان میں اس ملک کو مالاگاچی کہتے ہیں۔ مشہور زمانہ سیاح مارکو پولو نے اپنی کتاب دی ٹریول آف مارکو پولو میں مڈغاسکر کا نام مگادیشو کے نام پر کیا تھا، جو بعد میں نوآبادیاتی دور میں مڈغاسکر کہلایا جانے لگا اور یہی نام آج تک اس ملک کی پہچان بنا ہوا ہے۔ دوستو مڈغاسکر دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لنگور کی 100 سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جانور مڈغاسکر کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ملتے۔ صرف یہی نہیں، اس ملک میں پائے جانے والے 90% جانور، درخت اور پودے دنیا کے دوسرے کسی بھی ملک میں نہیں ملتے۔ اب آپ باوباب کے درختوں کو ہی دیکھ لیجئے، دکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے قدرت نے ان درختوں کو الٹا لگایا ہوا ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ گرگٹ اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر پائے جانے والے گرگٹ کچھ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ انسانی ہاتھ کا ناخن بھی ان سے بڑا ہوتا ہے۔ دوستو اس ملک میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکور کریں گے مڈغاسکر کی سرزمین کو۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو مڈغاسکر میں انسانی زندگی کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو یہاں پر انسانی زندگی کے آثار کم و بیش 2000 سال پرانے ہیں۔ شروع میں یہاں بسنے والے لوگ آسٹرونیشین تھے جو جنوب مشرقی ایشیا، خاص طور پر انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے ملکوں سے کشتیوں کے ذریعے یہاں پر پہنچے تھے، اور بعد ازاں یہاں افریقی قبائل بھی آ کر آباد ہوئے۔ 7ویں صدی عیسوی کے بعد یہاں عرب اور ہندوستان سے تاجر ونیلا اور مسالوں کی تجارت کی غرض سے آنے لگے، اور ان کے ساتھ لائے گئے سامان جیسے چاول، کپڑا اور زیورات نے یہاں کی مقامی ثقافت پر اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ 16ویں صدی میں مڈغاسکر میں مختلف قبائلی بادشاہتوں کا قیام ہوا۔ ان میں سب سے طاقتور بادشاہت مرینا سلطنت تھی، جس نے بہت جلد جزیرے کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ مرینا سلطنت کے حکمرانوں نے مڈغاسکر کو متحد کرنے کی کوشش کی اور جدید حکومتی نظام بھی متعارف کروایا۔ ان دنوں پرتگالیوں نے یہاں قبضے کی کوشش کی جنہیں مقامی لوگوں نے ناکام بنا دیا۔ پرتگالیوں کے بعد فرانسیسیوں اور برطانویوں کی نظریں اس خطے پر پڑنے لگیں، اور بالآخر 1896 میں فرانسیسیوں نے اس خطے کو اپنے قبضے میں لے کر اسے فرانس کی ایک کالونی بنا دیا۔ سن 1947 میں فرانسیسیوں کے خلاف ایک بڑی بغاوت ہوئی، لیکن یہ بغاوت تو ناکام رہی۔ اس کے بعد آزادی کی تحریکیں یہاں پہ شروع ہو گئیں۔ 26 جون 1960 کو مڈغاسکر نے فرانس سے مکمل آزادی حاصل کی اور خود کو جمہوری ملک قرار دیا۔ اب مڈغاسکر آزاد تو ہو چکا تھا، لیکن یہاں پر اب یورپی ثقافت بھی جھلکنے لگی تھی۔ خاص طور پر فرانسیسی جیسی زبان کا یہاں سرکاری سطح پر اتنا استعمال ہوا کہ یہ زبان اس جزیرے پر بسنے والے ہر دوسرے بندے کی زبان بن گئی، اور آزادی کے بعد میلاگاسی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان کو بھی ملکی زبان کا درجہ دیا گیا۔ ان 2 زبانوں کے علاوہ یہاں مزید 18 مقامی زبانیں ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں بولی جاتی ہیں۔ فرانسیسیوں سے پہلے اس خطے پر مسلمانوں کے علاوہ صرف وہ لوگ آباد تھے جو یا تو قصے کہانیوں پر یقین رکھتے تھے یا وہ تھے جن کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا۔ لیکن فرانسیسیوں کے بعد اس خطے پہ 85% سے زائد لوگ مسیحیت کے پیروکار بن گئے۔ آج اس ملک میں 3 سے 4% کے درمیان مسلم، چند سو ہندو اور باقی آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی دین مذہب نہیں ہے۔ 5,92,796 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک
अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 46वां बड़ा मुल्क है और 3,29,65,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। मडगास्कर की आबादी सऊदी अरब से सिर्फ 2 लाख अफराद कम है। इस मुल्क की करेंसी को आरी आरी कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपयों के बदले में आप 17 आरी आरी आसानी से हासिल कर सकते हैं। +261 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .mg इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, मडगास्कर के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जो अपने पत्तों में पानी का ज़ख़ीरा जमा कर लेता है और लोग सफ़र के दौरान इसके पत्तों से पानी निकाल कर पी सकते हैं। यही वजह है कि इस दरख्त को ट्रैवलर ट्री कहा जाता है। दोस्तों, मडगास्कर की आज भी 30% आबादी ऐसी है जिन्होंने आज तक अपने मुल्क के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर को नहीं देखा है। दोस्तों, मडगास्कर में आप बैक वक्त सहरा, रेन फॉरेस्ट, पहाड़, साहिली इलाके और ज़रख़ेज़ ज़मीन देख सकते हैं। ये मुल्क पूरे बर-ए-आज़म अफ्रीका की नुमाइंदगी करता है। यही वजह है कि इसे मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले बाओबाब के दरख्तों की उम्र किसी को भी मालूम नहीं है। हज़ारों सालों से ये इसी तरह खड़े हैं। इनकी शाखें जड़ों की तरह नज़र आती हैं। यही वजह है कि लोग इसे उल्टा दरख्त भी कहते हैं। बाओबाब के इन दरख्तों को देखने की सबसे मशहूर जगह बाओबाब एवेन्यू है, जहाँ ये दरख्त कतार में खड़े एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। बाओबाब का एक दरख्त अपने तने में 1,20,000 लीटर तक पानी जमा कर लेता है, जो खुश्क साली के दौरान इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि मुकामी लोग इस दरख्त को ज़िंदगी का दरख्त भी कहते हैं। इस दरख्त की छाल से फाइबर हासिल किया जाता है, जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं और इनके पत्तों को मुकामी लोग दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। स्कोट्रा आइलैंड के अलावा मडगास्कर दुनिया का एक ऐसा जजीरा है जहाँ ड्रैगन ब्लड ट्री पाया जाता है। यह दरख्त इतना मुनफरिद होता है कि काटने पर इसके अंदर से खून जैसा सुर्ख पानी निकलता है। कदीम मिस्री लोग निकलने वाले इस लाल रस को मम्मियों की हनूद के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, मडगास्कर अपने रकबे के हवाले से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जजीरा है। आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी गिरगिट की तरह रंग बदलने की मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मडगास्कर में पाया जाने वाला ब्रोकीसिया नाना गिरगिट इस दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट है। ये इतना छोटा है कि एक इंसानी नाखून भी इससे बड़ा नज़र आता है। मडगास्कर में फामा दिहाना नामी एक मुनफरिद रस्म है जिसे मुर्दों का त्यौहार कहा जाता है। इस रस्म में लोग अपने मुर्दा रिश्तेदारों की हड्डियों को निकाल कर दोबारा दफन करते हैं और इनके साथ ये रक्स भी करते हैं। मडगास्कर के अलावा ये रस्म दुनिया के दूसरे जिस मुल्क में होती है उसे इंडोनेशिया कहा जाता है। दोस्तों, मडगास्कर दुनिया के चौथे सबसे बड़े जजीरे पर बसा हुआ है, लेकिन इस जजीरे के अलावा इस मुल्क के 250 और जजीरे हैं। ये जजीरे मालदीव जैसी खूबसूरती अपने अंदर समोए हुए खाली खाली से दिखाई देते हैं। मार्शल आर्ट की एक किस्म मोरिंगे इस मुल्क में वसी पैमाने पर खेली जाने वाली खेल और इस मुल्क की कौमी खेल होने का एजाज़ रखती है। लंगूर इस मुल्क का कौमी जानवर और मडगास्कर ईगल फिश इस मुल्क का कौमी परिंदा है। बाओबाब के दरख्त को इस मुल्क का कौमी दरख्त होने का एजाज़ हासिल है। एंतानानारिवो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर का नाम मुश्किल होने की वजह से कॉलोनियल दौर से ही इस शहर को एंतानानारिवो की बजाय सिर्फ ताना कहा जाता है। मुल्क का आइन सन 2010 में मंजूर हुआ, जिसमें एक सदर मुसलसल 2 बार से ज़ायद मुल्क का सदर नहीं बन सकता। अवाम वोट के ज़रिए अपने सदर का इंतखाब करती है, जिसका दौरानिया 5 साल होता है और सदर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म सेलेक्ट करता है। मडगास्कर में तालीम की शरह सिर्फ 65% है। प्राइमरी तक मुफ्त तालीम है, जिसके बाद आपको पढ़ाई पर मुकम्मल खर्चा करना होता है। यहाँ गुर्बत होने की वजह से और तालीम महंगी होने की वजह से लोग तालीम से कोसों दूर भागते हैं, लेकिन हालिया चंद सालों में यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के ताउन से तालीम में बेहतरी लाई जा रही है। इस मुल्क में 300 से ज़ायद इकसाम के मेंढक पाए जाते हैं। इस मुल्क में चावल की खेती एक बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन ये मुल्क जितना भी चावल पैदा करता है उसका तकरीबन सारा हिस्सा अपने मुल्क में खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि मेलागासी लोग चावल खाने के इतने शौकीन हैं कि ये हर खाने के साथ चावल खाना पसंद करते हैं। इस मुल्क की 80% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। मुल्क की मुआइशत बुनियादी तौर पर ज़राअत, माहीगीरी
और माइनिंग इंडस्ट्री पर इन्हिसार करती है। इस मुल्क की मईशत में ज़राअत का बहुत बड़ा किरदार है। वनीला, कॉफ़ी, लौंग, कोको और इलायची जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। माइनिंग में यहाँ कोबाल्ट और निकल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। चीनी और कपड़ों की सनत इस मुल्क की 16% आबादी को रोज़गार दिए हुए है। पर कैपिटा GDP सिर्फ $529 है, जो इसे दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शुमार करती है। ब्रोंडी के अलावा दुनिया के दूसरे सभी मुल्कों को मडगास्कर में जाने के लिए या तो वीज़ा लेना होता है, जिसकी कीमत $37 है, या वीज़ा ऑन अराइवल लेना होता है। साल 2023 में इस मुल्क में सयाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ, जब इस मुल्क के लोगों ने 2,59,850 गैर मुल्की सयाहों को अपनी सरजमीन पर वेलकम किया, और इन सयाहों से इस मुल्क ने 534 मिलियन यूरो कमाए। मेडागास्कर का नुसे इरांजा आइलैंड टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। यहाँ बनाई गई रील्स शायद आप दुनिया के दूसरे किसी भी मुकाम पर ना बना पाएं। और दूसरा, यहाँ पर मौजूद है बीमाराहा नेशनल पार्क। ये पार्क अपनी नोकदार और तेज़ चट्टानों की वजह से मशहूर है। ये एडवेंचर करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ सयाह रस्सियों की मदद से इन चट्टानों पर चढ़ते हैं, और जब कामयाब ठहरते हैं तो पहले से बड़ी चट्टान इनके इंतज़ार में खड़ी होती है। ये नेशनल पार्क 734 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, और इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का एजाज़ भी हासिल है। फ्रांस, केनिया, मॉरिशस, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका और सेचेल्स जैसे मुल्कों से यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट आती है। सबसे सस्ती रिटर्न टिकट मॉरिशस के दारुल हुकूमत पोर्ट लुइस से मडगास्कर आती है, जो लगभग 75,000 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। अगर आप दुबई से यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए सस्ते में इथियोपियन एयरलाइन, केनियन एयरलाइन, जबकि डबल पैसों में एमिरेट्स एयरलाइन है, जिसकी रिटर्न टिकट आपको 1.5 लाख से 1,60,000 पाकिस्तानी रुपयों में पड़ेगी। होटल रेंट यहाँ पे $10 से $12 से लेके $200 तक होता है। यहाँ हलाल रेस्टोरेंट हैं तो सही, मगर कैपिटल सिटी के अलावा दूसरे शहरों में ना होने के बराबर हैं, लेकिन आपको यहाँ वेजिटेरियन खाना आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इस मुल्क में सैर के लिए जाते हैं तो अपने मोबाइल, पर्स और ज़रूरी सामान की हिफाजत आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पे होगी, क्योंकि इस मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी होने की वजह से चोरी और डकैती जैसे जराइम आम है। अगर आपको सेहत का कोई मसला बनता है तो आप इन दिनों में मडगास्कर का रुख बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक तो इस मुल्क में सरकारी सतह पर सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। जो प्राइवेट हस्पताल हैं वो इतने महंगे हैं कि एक बजट ट्रैवलर का सारा बजट दवाइयों के चक्रों में लग जाएगा। पाकिस्तान और मडगास्कर के सफारती ताल्लुकात 16 अगस्त 1962 को कायम हुए। साल 2022 में पाकिस्तान ने मडगास्कर को $153 मिलियन की एक्सपोर्ट की, जिसमें सीमेंट, चावल और कपड़ा शामिल था, जबकि उसी साल पाकिस्तान ने मडगास्कर से $7 मिलियन की इंपोर्ट भी की। पाकिस्तान ने इस मुल्क से लौंग, नाइट्रो फर्टिलाइज़र और पेपर खरीदे। दोस्तों, ये थी मडगास्कर पर बनाई गई हमारी एक तफरीही और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर लाजमी शेयर कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।